Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome student after your summer vacation, and I hope you and your family members all are healthy. So, student, today date is 7th June 2021. I am teaching you okay. Today date is 7 June 2021. Chapter number which I am teaching you, that is chapter number 2nd, and name of the chapter is parts of the body. So after completing chapter number 1 and book exercises of the chapter number 1, that is family, now we will start with the new chapter, that is parts of the body. So student, see, our body is a wonderful living machine. See, there are a lot of machines in our surroundings, but many of them are not, maximum of them are non-living. For example, car, bus, scooter, auto rickshaw. But our machine also work, our body also work like a machine, but it is a living machine. Is it clear? हमारे surroundings में बहुत सी चीजें हैं. Many things are in our surroundings. ठीक है, उनमें से बहुत सी मशीन्स भी हैं. That is man made machines. उन्हें किसने बनाया बेटा? उन्हें हमने बनाया है. That is the reason we see them as a man made things. Okay, but in the same manner our body is also a machine, but difference is that we are living. That is the reason we say that our body is a wonderful living machine. Now see student, let's do little recapitulation what we have done in our earlier video, that our body is made of a very small parts. Is it clear? Our body is made of very small parts, and these are known as cells. These are known as cells. Our body is made of many small parts, and these parts are known as cells. See, we perform different activities in our day to day life. ठीक है, हम अपने लाइफ में बहुत सी एक्टिविटी करते हैं. आप दिन में सोचो, इन द मॉर्निंग आप ब्रश करते हो, यू गो टू द ग्राउंड फॉर प्लेइंग पर्पस आल्सो, यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू आर राइटिंग इन योर कॉपी, और यू आर लिसनिंग व्हाट योर टीचर इज टीचिंग यू. तो इस तरह की हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ें करते हैं. एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल? All these things are possible because different functions are performed, or different work is done by different parts of our body. हमारे बॉडी में क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, एंड दिस पार्ट, ऑल दिस पार्ट वर्क so that we are able to do different things in our life. After that, see,
now just now I told you that there are different parts in our body and this is known as organs. ठीक है, different parts in our body is called it organs. ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, then the body parts are divided into two categories, that is internal and external. That is internal and external. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग, सो लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन. हमने क्या बोला बेटा, हमारी बॉडी क्या है, वंडरफुल लिविंग मशीन है. मशीन हमने दूसरी मशीन से इसको कंपेयर किया. अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो, कार भी है, बसेस भी हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन, दे ऑल आर मशीन्स. इन द सेम मैनर आवर बॉडी इज आल्सो अ मशीन, बट इट इज अ वंडरफुल लिविंग मशीन. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन इज दैट we breathe, we grow, we reproduce. So that is the reason our body is known as a wonderful living machine. Is it clear? And we have different parts in our body to perform different function. And when we are talking about the different parts of the body, then it is divided into two parts, that is internal organs or internal parts. Internal body parts I have written on the board, or you can directly write internal organs, and another category is known as external organs. So one by one let's discuss what are internal and what are external organs of the body. So let first of all we discuss about the external organs. So those organs which we are able to see with our eyes, because in this chapter I will also explain you about different sense organs of our body. हमारे बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, that things also we will discuss. So how you are able to see all the things in your surrounding? So answer is with the help of our eyes. So in the same manner, student, external organs are those organs of the body which we are able to see. Is it clear? Our nose, our ear, face, hand, legs, fingers. So that is the reason these are known as external organ. It means we are able to see these organs of our body. ठीक है, तो that is your external organs. For example, you can see your nose, eyes, finger,
leg extra. So that is the reason we say that these are the external organs of the body. Now let's discuss. I hope all of you are able to understand. Our body is a living machine. What is the reason for that? We need food, because food gives us energy to perform various things. We grow also, we breathe also. Is it clear? And we reproduce also. Reproduce also means, देखो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अपने तरह के यंग वंश को जन्म देते हैं. ठीक है. एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी होते हैं, तो हम अपनी तरह के यंग वंश को बर्थ देते हैं. सो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस आल्सो. ठीक है. तो दैट इज द रीजन हमारी बॉडी को वंडरफुल लिविंग मशीन बोला गया है. ठीक है. फिर आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एंड ऑल दीज पार्ट्स डू देयर वर्क. ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, दे डू देयर वर्क. अब ये दिस आई होप डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स, देन these organ is divided, or these parts of the body are divided into two categories, that is external and internal. I hope now external parts, you all are able to understand what are the external parts of the body. The parts of the body which we are able to see with our eyes, and few example I have already written on the board: nose, eyes, finger, legs, hand. So these are the external parts of the body which we are able to see. Now when we are talking about the internal organs, when we are talking about the internal organs of the body, then see student, under these categories the organs, what are these organs? The organ which we are unable to see. ठीक है. ऐसे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, you have listened this thing, or you have learned these things from your books, or from your parents, or from your teacher. We know that we have heart, lungs, kidney. These are the different organs inside our body, but we are unable to see them. पर हम इन्हें बेटा क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. That is the reason these are known as internal organs of the body. And what is the reason for that? See, the whole body, ये जो हमारी बॉडी है, इसको किसने कवर कर रखा है? This is known as skin. So skin cover our body. Due to this, we are unable to see these organs, and that is the reason these organs come in the category of a internal organs of the body. ठीक है. For example, heart, lungs, एक्स्ट्रा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ग्लैंड्स भी हैं. ठीक है. लीवर. सो these are the organs which we are unable to see with our eyes. That is the reason they are known as internal organs. Clear?
So in this chapter, in your new edition book, only given about discussion is about the external organ of the body, but for your good understanding I explain you both what are external and what are internal organs of the body. आपकी बुक में बेटा सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात की है, लेकिन आपको मैंने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं they are divided into two category, that is external and internal organs. Is it clear? And one more thing, देखो what is the difference, अगर आपसे कोई पूछ ले what is the difference between external internal organs, देखो जो आपके external organs हैं वो रेस्ट भी करते हैं, आप लोगों को पता है फॉर आवर गुड हेल्थ हमें 6 to 8 आवर्स डेली रेस्ट लेनी चाहिए, ठीक है। सो आपके बाकी के बॉडी पार्ट भी रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय। इज इट क्लियर? बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बेटा? दीज पार्ट नेवर रेस्ट, ठीक है, ये पार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स आपके बॉडी के ऐसे पार्ट भी हैं जो अपना वर्क कंटिन्यूअस करते रहते हैं, दे डू देयर वर्क कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है। आप स्कूल आते हो, इंटरवल होता है, लास्ट पीरियड होता है, स्कूल क्लोज हो जाता है, यू गो बैक टू योर होम, डेली यही होता है, ठीक है। बट इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे नेवर रेस्ट, ये रेस्ट कभी नहीं करते, इनका वर्क कंटिन्यूअस है। जैसे हमारा हार्ट है, इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इफ द हार्ट स्टॉप वर्किंग देन व्हाट्स हैपन? अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, कोई भी इंटरनल ऑर्गन अगर उसने फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया तो क्या होता है बेटा? वी डाई, हम मर जाते हैं, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे किसी की डेथ हो गई, क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हार्ट स्टॉप वर्किंग ऑफ दैट पर्सन, दैट इज द रीजन दैट पर्सन डाई। सो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी क्या स्पेशलिटी है कि ये थ्रू आउट लाइफ वर्क करते हैं, वंस द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड till his last time, that is up to his, अगर ये स्टॉप कब करेंगे? इफ द पर्सन डाई, ठीक है। ये थ्रू आउट लाइफ वर्क करते हैं, अगर इन्होंने वर्क करना बंद कर दिया तो इसका मतलब द पर्सन डाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की। सो नाउ एक्सटर्नल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। लेट टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और वन मोर डिफरेंस, अगर आपको कुछ इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन में लेना है तो जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिविजुअली उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे आईज, यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड यू विद द हेल्प ऑफ योर आईज, ठीक है, ये आईज का ही फंक्शन है। अगर आप सोचो कि नोज से हम ऑल द थिंग्स देख सकते हैं इन आवर सराउंडिंग, तो दिस इज पॉसिबल? नो। तो आपके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं ये इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं, लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन दैट मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ना, जैसे हार्ट की बात कर लें, हार्ट का फंक्शन क्या है? इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो व्हाट आर द पार्ट ऑफ द हार्ट? उसमें क्या आएगा? आपका हार्ट आ जाएगा, आर्टरी आएगी, वेन आएगी, कैपिलरीज आएंगी, ये अभी आपके लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है।
सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि जो इंटरनल ऑर्गन्स में कई ऑर्गन्स दे वर्क टू दैट दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कई ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हो तो आपकी जो टीम होगी, ऑल 11 प्लेयर ऑफ द टीम सब यूनाइट हो गए, सब अच्छा परफॉर्म करोगे अपनी टीम को बेस्ट करने के लिए। ठीक है, इन द सेम मैनर इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत से ऑर्गन्स आपस में मिलके वर्क करते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सो नाउ इन द बुक discussion is given of external organ of the body. Okay, so in the book there are many external organ, but in the book here it is given, firstly we will talk about the external organs, that is we are talking about the limbs. Okay, that is your hand, and next is your leg. ओके, सो फर्स्टली जो आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इफ आई से स्टूडेंट रेज देयर हैंड, हम हैंड ही बोलते हैं, इज इट क्लियर? आप तुरंत रेज करोगे, इज इट क्लियर? सो द टू इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स of our body which help us to perform many functions in our day to day life or many work in our day to day life. So we will discuss about hand and legs. We will discuss about hands and legs. Okay, so let first of all we understand different parts of hand. अब देखो जो आपके हैंड्स हैं, आपके बुक में डायरेक्टली दे दिया है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स में वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्स। तो जो हैंड है ये अपर लिम्स होते हैं, और जो आपके लेग्स आएंगे ये लोअर लिम्स में आते हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 4th 5th में, देन इट इज जब लिम्स की बात होगी जिससे हमारे बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है और डिफरेंट ये कर रहे हैं, सो इट इज डिवाइड इन अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। इज इट क्लियर? सो हियर एक्सटर्नल ऑर्गन वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंड एंड लेग्स। नाउ व्हाट वी विल स्टडी हियर, वी विल स्टडी हियर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हैंड। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हैंड। ऐसे हम पूरे इसको हम हैंड ही बोलते हैं, but when we see this in this hand there are different parts of the hand. ठीक है, hands के different parts हैं, so that we will discuss with the help of the figure. Firstly we are talking about hand. Okay, now let discuss one by one this portion.
Okay, this portion is known as, this portion of the hand is known as elbow. इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्बो बोलते हैं. इज इट क्लियर? दिस पोर्शन नोन एज आर्म. दिस पोर्शन इज नोन एज आर्म. और ये जो है बेटा, ये जो आपका हैंड है ना, ठीक है, ये आप इसे अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कलाई. इसकी हम मूवमेंट कर सकते हैं, अप डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन जो कर रहे हैं, दिस इज योर रिस्ट. और ये जो आपका हैंड है, ये क्या है? ऊपर, दीज आर फिंगर्स. ये पोर्शन, दिस पोर्शन जो आप बात कर रहे हो, ये क्या है? पाम. एंड ये पूरा आ गया फिंगर्स. इज इट क्लियर? सो द इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिम्स. ठीक है, अपर लिम्स में हैंड आएंगे, लोअर लिम्स में लेग्स आएंगे. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज, ये जो आपकी, ये देखिए, ये हैंड है, आप इसको अपनी ओर इनसाइड ये बेंड कर जाती है. लेकिन आप सोचो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टर्न होगी नहीं. इसकी मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में है, दैट इज इनसाइड मूवमेंट है, नॉट आउटसाइड. आउटसाइड की आप कोशिश करोगे, इट विल ब्रेक. ये क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी. तो हियर, यहाँ पे एक ज्वाइंट है. इज इट क्लियर? ड्यू टू विच we can do inside movement, and this joint is known as elbow. इसको हमने क्या बोला? elbow बोला. Is it clear? So elbow, this portion is arm, finger, palm, and this which you can up down, you can rotate it also. This is known as your wrist. So what are, when we are talking about the hand, a complete hand, ठीक है. सो मे बी इन द एग्जाम द टीचर कैन आस्क यू, टेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हैंड. सो इन दैट यू विल राइट द आंसर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैंड्स आर आर्म, एल्बो, wrist, palm and fingers. So these are different parts of your hand. Is it clear? I hope you all are able to understand, because in the book we will discussing about two important external parts, that is hand and legs. So we say it as a hand. कोई आपको क्लास में कोई ये नहीं बोलेगा रेज योर एल्बो और रेज योर फिंगर्स. सो रेज ए हैंड, वी रेज फुल हैंड. इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज हैंड, एंड दीज आर व्हाट? एल्बो, आर्म, रिस्ट, आर्म एंड फिंगर्स. These are the parts of the hand, and you know that we perform different action with the help of our hand. We can write with our hand, we can hold anything. For example, this is a marker, so I hold this marker with my fingers. You can throw the thing, with your hand. Even when you are playing, how you take the catch in the match? By your hand, not by your leg. How you take the catch? By your hand. You can push or pull the object.
with the hand. Okay, thank you student.